Hello everyone. In this video, we will discuss some problems on LPP, that is linear programming. Okay. As we already discussed, fundamental of linear programming, also taken 2 or 3 example on that. Okay. So let us move further. Question says that minimize z equal to minus 3x plus 4y subject to constraints are x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y get less than equal to 12, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ठीक है, these are called constraint. ठीक है, is all 4 inequalities are called subject to constraint. Means limitations. ठीक है, that's why we have to take the common reason in all the 4 or 5 whatever the number of inequalities. ठीक है, so first we draw the graph of each of the following inequalities, then we find the common reason. Okay, so first one is x plus 2y equal to 8. Next one is 3x plus 2y equal to 12, and last x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. While drawing the graph of the linear inequalities, okay, we have to taken like as it is, means x plus 2y equal to 8, not less than equal to 8. Okay, and you already know that x is greater than 0 and y is greater than 0 represent first quadrant. Represent first quadrant. It means graph of given subject to constraint must be in first quadrant. Okay, so let us find points on these two lines. X, y. X को 0 substitute किया, then I get y equal to 4, and y को 0 substitute किया, x equal to 8. और find कर सकते हैं, let us say x equal to 2, so y equal to for this x0 y6 y0 x4. Okay, x2 3 to the 6 y 3 पॉइंट्स हमने फाइंड किया. ठीक है, वैसे तो 2 पॉइंट्स अपना काम चल जाएगा. ठीक है, we can draw the lines by using only 2 points, but I write third one because CVC required third one also. Okay, so next one is, so now time is to draw the graph of these lines. Okay. So this is 0. Maximum is 8. Okay, and minimum is 2. So you have to take a scale like that. Okay, x and this is y. So let us say this is 2, this is 4, this is 6, and this is 8. 2, 4, 6, and 8. So first row, first line means this one. X equal to 0, y4. X0, y4 means this point. This one. X0, y4. Next one is x8, y0 means this point. X8, y0. Okay. No need of third one. Okay. First draw the line, then show on that line this point 2, 3. Okay, so draw a line. Okay, so this is the line 1. We have to write the equation of that one also. That is x plus 2y less than equal to 8. X plus 2y less than equal to 8. Okay, next one is if you want to show that point 2, 3, then you can also show on that one. Okay, so x is 2, y is 3, means this is y3 if you want. Okay,
So maybe point lies here, 2 comma, but no need of that one. X, next one is x0 y6. Okay, x0 y6. x0 y6 means this point, x0 y6. Next one is x4 y0, x4 y0. Okay, let us draw the that line also. Okay, so this one is also completed. Okay, so line number 2 is also completed. Write the equation of that one also. 3x plus 2y less than equal to 12. 3x plus 2y less than equal to 12. And next two inequalities, which is called non-negative condition, that is x is greater than 0, y is greater than equal to 0. Means graph will be lies in first quadrant, or you can say that this is the both inequality represent first quadrant. So no need of draw that one. Okay. Or if you want to draw, then you can draw. Okay, I already tell you how to draw like that. So now time is to shade the common region. Okay. So first inequality is x plus 2y less than equal to 8. X plus 2y, right by green better. Okay. X plus 2y less than equal to 8. And another one is 3x plus 2y less than equal to 12. Okay. Yes. So now check 0, 0. Check 0, 0. Means we check the inequality with respect to origin. At which side it should be lie. So x0 plus 2 into 0, that is 0. So here 0 is less than equal to 8. So it means it is a true. Obviously 0 is less than equal to 8. Only one condition at a time. 0 is less than 8. Yes, it is true. So if it is true, then shade it towards the origin. Means this one is origin. Or you can say that no, I already told you. Okay. Give me an example also in that. Okay. So shading is towards the origin. Okay, check next one. Next one is check 0, 0. Check 0, 0. So here this one is 0, this one is also 0. 3 into 0, 0, 2 into 0, 0. You have to substitute x and y here. Okay. So 0 is less than equal to 12. So this one is also true. So shading is toward the origin. Now you have to find the common region. Okay, now you have to find the common region, but condition is that in first quadrant only, because there is a non-negative condition also. X is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So this is the common region. So blue one. So this one is the common region. Okay. So here we already done yesterday also. Okay. Now I have to minimize z equal to minus 3x plus 4y. Okay. So after shaded the region, so you can see that I have one shaded region. So let us give a border point, or you can say that corner point to this shaded region. So wait a minute. So this one is A, this one is A, this one is B, this one is C, and this one is D. Corner point. All are corner point. A, B, C, D. Okay. So here you can easily find what is point A, that is 0, 0. What is point B, that is 0, 4. Point C, we have to find it again. And what is point D, 4, 0. Now we have to find the point C. We have already 3 points, but we have to find the point C. Okay, so 4 point C, you can easily see that point C is nothing but intersection point of both lines. Intersection point of both lines. So we have to find the point C also. Okay, so 4
पॉइंट सी। ओके, तो पॉइंट सी किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? दोनों लाइनों का, मीन्स दिस वन, ठीक है। x + 2y = 8, 3x + 2y = 12. So two equation, two variable, you can solve very easily, ठीक है। So first directly subtract, because 2y is common, minus minus minus, so this is 2x and this is 4, so x = 2. If x = 2, then what is the value of y? Substitute here, x + 2y = 8, so that is 2 + 2y = 8, means 2y 6, it means y 3. So c is nothing but 2, 3. Okay. ओके, सो दिस इज पॉइंट सी। आप बोलोगे सर सी तो 2,3 पहले दिख रहा था, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे, जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे तो एग्जैक्ट दिखता है वहां पे, ये 2,3 है। बट ये ग्राफ थोड़ी ना है, ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं है ना ये, इट इज नॉट अ ग्राफ पेपर, ठीक है। तो हो सकता है गलत भी हो जाए आपका जो भी अजम्पशन है, तो बेटर है फाइंड कर लिए, ठीक है। ओके, सो पॉइंट सी इज ऑल्सो हियर। सो नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज here you have to write corner point and here you have to write z. What is z? Z is an objective function actually, ठीक है, which has to be minimized or maximized depend on the condition. So z is nothing but -3x + 4y, -3x + 4y, so -3x + 4y. Okay, so point A is 0 0, corner point. Point B is 0,4, point C is 2,3, 0,4, 2,3, and D is 4,0. Okay, now substitute one by one in given objective function. So -3 × 0 + 4 × 0, that is 0. If I substitute 0 0 in given objective function, next one is -3 × 0 + 4 4 ja 16, so that is 16. So next one is -3 × 2 + 4 × 3, 4 3 ja 12, -6, that is 6. And next one -3 × 4 + 4 × 0, so here is -12. So you have to find the minimum, I think. Yes, minimize. Yeah. So you have to minimize this objective function. Okay. So what is the minimum value? Here minimum value is -12. Okay. So you can write that z is minimum at d 4, when x = 4, y = 0. And if you want the maximum value, z is maximum at maximum value is 16, so at 0, 4. Okay, so this is the complete question, ठीक है। From subjective point of view, if there is a question of objective form, then you have to solve like that only. Okay, there is no shortcut of that one. But order doesn't matter. But if you want to solve in subjective form, then you have to follow the order also. First you have to draw the graph, then check 0 0, and if there is unknown point, you have to find it, then minimize or maximize. It's depend on a question. Okay, और इसी क्वेश्चन को वो ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है, लाइक दैट इफ इट कम्स इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। लेट अस से क्वेश्चन इज लाइक दैट, इफ z = लाइक दैट, कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे देगा आपको, ठीक है।
x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y less than equal to 12, x plus 2y less than equal to 8. Next one is 3x plus 2y less than equal to 12, and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. Z क्या था अपना -3x plus 4y. Yes. So minimum value of z is, ऑप्शन दे देगा आपको 0, -12, 3. So what is the minimum value? That is -12. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? -12. ठीक है, अब यहाँ से वो क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है. ठीक है, एक तो ये पूछ लेगा मिनिमम वैल्यू, एक ऐसे पूछ सकता है कि z is minimum at which point? Z is minimum at which point? और आपको ऑप्शन देगा पॉइंट इस बार. ठीक है, तो मान लो पॉइंट दे दिया 4,0, बी दे दिया 0,4 और सी दे दिया 0,0 एंड डी दे दिया लाइक दैट 0,6. तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? मिनिमम का रहा है 4,0 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4,0. ओके, कभी कभी सॉल्यूशन सेट वर्ड यूज कर लेता है वो. ठीक है, तो ये भी बोल देता है ठीक है कि सॉल्यूशन मतलब द पॉइंट lies in solution set of, ये पूरा जो भी है. ठीक है, ये जो भी कंस्टेंट है समझ रहे हो. ठीक है, तो इनमें से एक पॉइंट दे देगा, बाकी अलग अलग पॉइंट दे देगा. मान लो ये सॉल्यूशन सेट में लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये 4,0 हो गया, बाकी अलग अलग दे देगा जो लाई नहीं कर रही. 8,0 दे देगा. ठीक है, 5, मान लो 10,0 दे देगा. ठीक है, और डी 0,100 दे देगा लाइक दैट. तो फिर आंसर क्या आ जाएगा अपना 4,0 जो उसके सॉल्यूशन सेट में लाई कर रहा है. ठीक है, सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही पॉइंट देगा, बाकी डिफरेंट है, अदरवाइज दूसरे पॉइंट भी लाई कर सकते हैं. ठीक है, बट जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ सिंगल करेक्ट है. ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ. अब क्वेश्चन क्या है कि इफ अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन ही ओरिजिन से पास कर जाए फिर क्या होगा. और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, देखो अभी हम चेक 0,0 कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन से. और अगर लाइन ही ओरिजिन से पास कर जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर तो आप चेक 0,0 नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो तो अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो वो तो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, मतलब 0,0 उस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो आप ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते उसे कभी भी. ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट हो गए. सो दिस वन इज जेड. अब हमको मिनिमम मैक्सिमाइज दोनों करना है. क्वेश्चन में ये बोला है कि मिनिमम है 2 पॉइंट पे, तो z इज दिस वन. ठीक है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके, subject to constraint are x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0 और x and y greater than equal to 0. तो ऑब्वियस है दिस वन रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, शेडेड रीजन जो भी है. ओके, सो हियर इट इज इजी, वेरी इजी. ठीक है, दिस वन मींस x plus 2y equal to 120, x plus y equal to 60, but this line is passes through origin. ठीक है, if I write like that ना, x minus 2y equal to 0, तो it means x equal to 2y. और इस टाइप की लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है? ओरिजिन से. आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, x equal to 0 और y 0 सब्स्टिट्यूट करो, ट्रू आएगा. इट मींस दिस लाइन इज पासेस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, और इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए जब हम बाद में चेक करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, x is greater than equal to 2y also. ओके, चलो आगे करते हैं फिर. तो पॉइंट निकाल लेते हैं जल्दी से. ठीक है, 2 ही पॉइंट निकाल रहा हूँ इस बार. ठीक है, x है और ये y है. x को 0 डाला
y 60 आएगा, y को 0 डाला, x is nothing but 120. Next one is x and y, x 0 y 60, बेटा x 0 y 60, y 0 x 60. और यहाँ पे तो आप कुछ भी निकाल लो, ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, x 0 y 0, ठीक है, x 2 y 1 है ना, ठीक है, बट ओरिजिन से पास हो रही तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, बना लेंगे वैसे लाइन, ठीक है. ओके, अभी इसको करते हैं ड्रॉ. फर्स्ट कॉर्नर में बनने वाला है ग्राफ इसका, ठीक है. ओके, मैक्सिमम वैल्यू 60, सॉरी 120. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्केल आल्सो. ओके, so this is 0. You can take 40 or 30. 30 is best, ठीक है. 30, 30, 60, 90, 120. 30, 60, 90, 120. ठीक है. Okay, so this one is 0. So draw the graph, ठीक है. X 0 y 60. X 0 y 60 means this point. X 120 y 0 means this point. Okay, draw the line. तो ये लाइन बन गई हमारी, ठीक है. इस पे लिख भी दिया, ठीक है. x plus 2y लेस देन इक्वल टू 120 की लाइन है, ठीक है. x plus 2y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है. नेक्स्ट वन इज x 0 y 60, y 0 x 60. ओके, सो नेक्स्ट वन इज x 0 y 60, तो ये पॉइंट हो गया, और x 60 y 0. Okay, so this one is a line number 2, that is x plus y greater than equal to 60. x plus y greater than equal to 60. And what about the third line, that is line passing through origin? Obviously line is passing through origin, और इस टाइप से पास, यहाँ से पास करेगी ये लाइन, ठीक है, क्योंकि x को 2 डालने तो y बनेगी, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू. इट मींस ये जो लाइन आएगी ओरिजिन से पास करेगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये लाइन करेगी ओरिजिन से पास, ठीक है. और ये लाइन है क्या, मींस x माइनस, यू कैन से दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ठीक है, और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ आर सेम थिंग. तो ये थर्ड इनइक्वालिटी हो गई बस. बाकी तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ इट्स टाइम टू शेड द रीजन. So first one is yellow one. Check 0 0. So 0 plus 0 less than 120. Yes, it is true. So जो येलो वाली लाइन है उसकी शेडिंग कहाँ पे होगी, ओरिजिन की तरफ. ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रीन वन. चेक 0 0. तो 0 plus 0 ग्रेटर देन 60. तो ये हो जाएगा फॉल्स. 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 60. तो इसकी शेडिंग अपोजिट टू ओरिजिन हो जाएगी, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दैट रेड लाइन, बिकॉज इट्स पासिस थ्रू ओरिजिन, तो आप इस पे 0 0 तो चेक कर नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा. क्यों, देखो जरा. इफ x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो आपने 0 डाला, तो 0 माइनस 0, क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है? अब इसमें कंफ्यूजन है, ना तो ये ट्रू होगा ना फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें 0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है. तो क्योंकि ये जो है ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो इस पे आप चेक 0 0 नहीं कर सकते. कोई भी लाइन, इफ अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन देन यू कैन नॉट चेक 0 0. तो फिर क्या करेंगे, तो भाई अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लो, अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लो, चूज एनी वन पॉइंट.
choose any one ठीक है, बट लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट पॉइंट शुड नॉट बी लाइज ऑन द लाइन, दैट पॉइंट मस्ट नॉट बी लाइज on a line which passes through origin. बिकॉज अगर ओरिजिन से पास करने पे ले मतलब सॉरी उसी लाइन पे ले लिया पॉइंट तो फिर सेटिस्फाई तो होगा नहीं। तो अब पॉइंट का लिए मैं तो सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। पॉइंट हमेशा एक्स या वाई एक्सिस पे ले लिया, सबसे बेस्ट है। कहाँ पे ले लिया? या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ले लें, कौन सा पॉइंट ले लें? ये ले लें 120 ये ले लेते हैं, बेस्ट है। या फिर 60,0 ले लो, आपकी मर्जी है। तो 60,0 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या? यस, तो हमने एक पॉइंट अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया 60,0। अब सुनो, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो शेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, इफ इट्स फॉल्स देन शेडिंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो डाल के देखते हैं, x को 60 y को 0। क्या 60 0 से बड़ा होता है? यस, ट्रू। तो इट मींस शेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, शेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, है ना। जैसे ओरिजिन पे चेक करते थे ना, अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अदरवाइज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सेम एज दैट, ठीक है। इफ इट्स ट्रू देन टुवर्ड्स द पॉइंट, अदरवाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये रहा पॉइंट जो हमने लिया था, तो इसकी शेडिंग इसकी तरफ हो जाएगी। बट आपको ढूंढना है कॉमन रीजन। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कॉमन रीजन ये वाला है, देखो ये रीजन मैं शेड करने वाला हूँ इसे, ठीक है। मीन्स अपना जो कॉमन रीजन है वो है ये वाला, ये रीजन कॉमन है, येलो वन। और बस इतना ही आएगा, रेड से ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज वो कॉमन नहीं रहेगा। तो उसमें कॉर्नर पॉइंट देख लेते हैं। ए दिस पॉइंट, बी दिस पॉइंट, सी दिस पॉइंट और डी दिस पॉइंट। आपके पास सी और डी ऑलरेडी है 60,0 और 120,0, बट आपके पास ए नहीं है ना आपके पास बी है, बट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ए किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बना दो तो एज इट इज दिख जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व इट। ए इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रीन और येलो लाइन का, ग्रीन और येलो लाइन का, ठीक है। तो 4.8, 4.8 ग्रीन एंड येलो, ये तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 60। येलो नहीं है, सॉरी रेड है, ठीक है। रेड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, ग्रीन है तो चलो ग्रीन से लिख देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0, दैट इज रेड, दैट इज रेड। दोनों को सॉल्व कर लो, x और y निकाल लो, ठीक है। क्या करें, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इसमें से, x माइनस 2y इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 16। तो y इक्वल टू कितना? 20। y20 यहाँ पे डाल दो, y20 20 टू द 40, तो x कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो x 40 y20 दैट इज पॉइंट ए, 40 एंड 20। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर बी, नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर बी। B is the intersection point of what? Red and yellow, red and yellow, red and yellow line. तो रेड की इक्वेशन रेड से लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 2y इक्वल टू 0 और येलो x प्लस 2y इक्वल टू 20, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 120, यस।
चलो सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। क्या करें, सब टका है फिर से ऐड कर देते हैं दोनों को, है ना। कैंसल 2x इक्वल टू 120 दैट इज x इक्वल टू 60 और x 60 आएगा तो यहाँ पे डाल दो x 60, ठीक है। तो y 30 आ जाएगा। तो B पॉइंट इज नथिंग बट 60 30, चारों पॉइंट आ गए हमारे पास। तो लास्ट स्टेप इज कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट, इसमें हमारा A B C और D है। D is nothing but ऊपर होगा, ठीक है। पहले ए भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए क्या है 40,20, ए क्या है अपना 40,20, बी है अपना 60,30 एंड सी इज नथिंग बट 120,0 और 60,0। ये अपना 120,0 और ये 60,0 एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z। तो अपना जो z है वो क्या है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y, ठीक है। भी करते हैं सॉल्व इसे, ठीक है। तो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, फिर 200, ये भी 200, 400 हो गया। नेक्स्ट 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, तो 300, 300, 600 हो गया। नेक्स्ट 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, तो ये हो गया 600। नेक्स्ट 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, ये हो गया अपना 300, ठीक है। तो मैं मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, ये मिनिमम है, ये क्या है इसका मिनिमम है। मैक्सिमम दो जगह आ रहा है, तो वही प्रूफ भी करना था, मैक्सिमम में मिनिमम दो जगह आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आई थिंक। मिनिमम मिनिमम शो कर रहा है, ठीक है। मिनिमम ऑफ जेड अकर एट द मोर देन 2 पॉइंट, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या है 5x प्लस 10y है, वेरीफाई कर लेते हैं इसे, ठीक है। 5x प्लस 10y है, 5 4 जा 20, 200 और 20 इंटू 10 400, तो ये 200 आएगा, ठीक है। हाँ, तो 200 200 400 हो गया। नेक्स्ट इज 5 6 जा 30 और ये 300, ठीक है। ये भी 600 आएगा, 120, ये भी 600 आएगा और ये 5 6 जा 30, ठीक है। तो वहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। वहाँ पे मैक्सिमम लिखना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम नॉट मिनिमम। मिनिमम तो एक ही पॉइंट पे आएगा ये, ठीक है। 300 मतलब 60,0 पे, मैक्सिमम दो जगह आएगा ये 60 30 पे और 120 0, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच।